वाहिगुरु। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावै सो उतरै पार। नासिरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, इजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप संगतां ने हाजरीन हो के सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों श्री मुखवाक गुरबाणी का फुरमान सरवण किया है। आओ साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की दसम बाणी दे विचों जो बचित्र नाटक की व्याख्या चल रही है, बाणी नाल जुड़ के समय नूं जीवन नूं सफला करन दा जतन करिए। महाराज पातशाह अपनी बाणी विच फुरमान करते ने उस अकाल पुरख दे सन्मुख दुनिया दे हर सूरबीर अवतार महापुरुष नूं रखते ने भी किवें वो परमात्मा अपने काल दे नाल सारियां दा खात्मा करदा है, सारी कृत बनतर नूं मिटा दिंदा है और आप सदीवी है। जिनै दीप दीपंग दुहाई फिराई, पूजा दंड दै सोण शत्रंग शिनाई। महाराज कहंदे ने जिन्ना सूरबीरां ने दीप तो भाव है ये जिहड़े 7 हिस्से ने दीप ने। हुण वो टुकड़ा जिहदे इर्द गिर्द समुंदर है, अफ्रीका आस्ट्रेलिया एशिया सारे जिन्ने टुकड़े ने, कहंदे होए ने बड़े राजे जिन्हां ने अपनी जित दा ढंडोरा पिटवाया होया सी भी सारे दीप असीं जिते हुए ने। महाराज कहंदे भुजा दंड दै सोण शत्रंग शिनाई। ऐसे जेड़े शत्रंग ने सूरमे ने धरती नूं जितण वाले, अकाल पुरख ने भुजा दंड दै अपनियां बलवान भुजावां नाल सूरमियां नूं दंड दे के खुरा खोज मिटा के छोण तो भाव है धरती खो लई, फिर होर राजे थाप दिंदा है। करे जग कोटं जसं अनेक लीते, वह वीर बंके बली काल जीते। बड़े बड़े सूरबीरां ने यज्ञ कीते, सदीवी रहन लई प्रार्थनावां कीतियां, पूजन कीते, बलिदान दिते गए, बलियां दित्तियां भी साडी उम्र वध जावे। करोड़ा होए ने, करोड़ा इन्हां ने जग कीते ने। जसंग अनेक लीते, वड्याई भी बड़ी खटी दान पुन करके। महाराज कहंदे वाह वीर बंके, बड़े बड़े
ਬੰਕੇ ਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਲੀ ਕਾਲ ਜੀਤੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਾਲ ਚਲਾਏ ਬੰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਰਖਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਲੀਨੇ ਜਿਨੈ ਦੁਰਗ ਢਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਸੂਰ ਬੀਰਾਨ ਕੇ ਸੈਨ ਗਾਹੇ। ਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਲੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਭਾਵ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਥਾਪੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗ ਢਾਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਗਾਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਰਗੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜੰਗ ਕੀਨੇ ਸੋ ਸਾਕੇ ਪਵਾਰੇ, ਵਾਹ ਦੀਨ ਦੇਖੇ ਗਿਰੇ ਕਾਲ ਮਾਰੇ। ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਤੇ ਸਾਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਵਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੜੇ ਪਵਾੜੇ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਬੜੇ ਪਵਾੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ। ਵਾਹ ਦੀਨ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝੁਗਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਕਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਠੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੈ ਖੰਡੀਅੰ ਦੰਡ ਧਾਰੰ ਅਪਾਰੰ, ਕਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰ ਚੇਰੇ ਦੁਆਰੰ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ। ਦੰਡ ਧਾਰੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਾਰੰ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰ ਚੇਰੇ ਦੁਆਰੰ। ਚੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵਣ ਬਾਬਤ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਰਸੋਈ ਤਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਧੋਣ ਲਈ ਭੱਠੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਇੰਦਰ ਸੇ ਜੀਤ ਕਹਿ ਛੋੜ ਡਾਰੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਦੀਨ ਦੇਖੇ ਗਿਰੇ ਕਾਲ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੇ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਚੰਦ ਸੂਰਜਾਂ ਕੀ ਤਪਤ
रसोई, बैसंतर जाके कपड़ा धोई, जिहदे हुक्म विच ये सब कुछ चलता सी। सो वो भी कहंदे दीन हो गया, काल दे अगे उसनूं भी झुकना पिया, निमाणा बनना पिया, रावण भी डिग पिया। रसावल छंद जिते राम हुए, सभै अंत मूए। हुण महाराज इत्थे कहंदे ने जितने भी महापुरुष होए ने, बड़े बड़े रामचंद्र जी वर्गे अवतार होए ने, कहंदे अंत नूं दुनिया ते कोई रह नहीं पाया, उसनूं दुनिया तो जाना पिया। शरीर करके कोई सतपुरुष कोई साखत नहीं रह सकता। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, इथों सब नूं जाना पैंदा है। महाराज अगे कहंदे ने जिते कृष्ण होए हैं, सभै अंत जय हैं। भगवान कृष्ण जी वर्गे जेड़े अवतार होए ने, गुरु पातशाह कहंदे ने उन्हां नूं भी अपना समा उम्र भोग के जाना पिया। काल दे अगे कोई टिकदा नहीं है। जितै देव होसी सभै अंत जासी। कहंदे जिन्ने देवते होए अंत नूं जांदे ने जां होणगे, अंत नूं उन्हां नूं जाना पवेगा। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। कहंदे इत्थे कोई रहन वाला नहीं है। रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। महाराज कहंदे सब इथों जांदे ने। जिते बोध होए हैं, सब अंत शय हैं। महात्मा बुद्ध वर्गे, गौतम ऋषि, गौतम अवतार, कहंदे ओ जेड़े ऐसे भी सतपुरुष होए ने ना, मौन धारी, सब अंत शय हैं। शय कहंदे ने खात्मा हो जाना। इन्हां नूं भी पातशाह कहंदे दुनिया तो जाना पिया है। जितै देव रायं सभै अंत जायं। राय दा मतलब है राजा। जिन्ने भी राजे ने राज भाग कुर्सियां तख्त भोग रहे ने, जिन्नी भी ताकत है उन्हां दी डांग विच काल दे अगे ये ताकत नहीं चलती। महाराज कहंदे जाना पैंदा है। जितै दैत एसं तित्यो काल लेसं। दैत दिति ते कश्यप दी औलाद जिन्हों दैत कहने हैं। एसं ईश स्वामी, दैंतां दे ईश्वर, बड़े बड़े शैतान, बड़े बड़े जेड़े दैंत होए ने। महाराज कहंदे ने तित्यो काल लेसं। लेस दा भाव है लै जाना। शैतान नूं दैंतां नूं भी काल नहीं छड्डदा। अगे कुछ अवतारां दा होर जिक्र करदे ने। इहदा मतलब पता की है? बचित्र नाटक दा। बचित्र नाटक तो ये समझ पैंदी है भी जिन्ने भी अवतार महापुरुष ने अदब सारियां दा करो, पर एक रेता मिट जाती है। जुड़ना एक अकाल पुरख नाल है जो सदीवी है, जो आप नहीं रहेगा। उस कृत दी पूजा विच की है? कहते करते दे नाल जुड़ो, अकाल पुरख नाल जुड़ो। अगे अवतार दा एक दा जिक्र करते ने। नरसिंह अवतारंग वहे काल मारंग। एक नरसिंह अवतार होए ने ना, जिन्ना हरनाकश नूं मारिया सी। भगत हेत नरसिंह भेव गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है भी भगतां दे हेत उन्हें अवतार तारिया। वह काल मारंग, पर कहंदे काल ने उसनूं भी मार लिया, उसनूं भी उम्र भोग के जाना पिया। अगे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने बड़ो दंड धारी हणियों काल भारी। इत्थे महाराज कहंदे ने बड़ा दंड नूं धारने वाला, बल नूं धारने वाला। कोई भी सूरमा होया है हणियों काल भारी, पर काल नालों भारा नहीं है। भारे तो भारे सूरमे काल ने ढाए हुए ने। हणियों हत्या की हुई है काल ने हर एक दी। दिजंग बावनेयंग हणियों काल तेयंग। ये सारे अवतार गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदे ने। ब्राह्मण का अवतार किसने धारिया? 52 कोट जाके रोमावली। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे
52 अवतार वर्गे ਉਹਦੇ रोम ही समझ लो करोड़ां ने, भाव शरीर ते करोड़ां रोम ने, अवतार ਉਹਦੇ ਲਈ रोम है बस, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ नहीं। अकाल पुरख एडा ਵੱਡਾ है। हाँ आम दुनियावी लोगों नालों ताकतां अवतारां कोल ਵੱਧ ने, पर परमात्मा नालों कोई ਵੱਡਾ नहीं। कहंदे दिजंग अवतार नूं भी काल ने हथ लिया, खुरा खोज मिटा दिता। महा मश मुंडंग फंदिओ काल झुंडंग। मारू महला पंजवा। मश कश कूरम आग्या अवतरासी। मश कश जिहड़े अवतार होए ने गुरु ग्रंथ साहिब विच जिन्हां दा जिक्र है, बचित्र नाटक के 24 अवतारां विच इन्हां दा विस्तार विच जिक्र है। कदे समा लगे तो पढ़ के देखना, पर सिट्टा एक ही है। उन्हां दे जीवन चों जंगजू किरिया, विकारां नाल टकराउणा, जंग युद्ध दी सिੱਖਿਆ लै लवो ते जुड़ना काल पुरख नाल है। महाराज कहंदे गुरु गोबिंद सिंह इदां ही कहंदे एक महामश मुंडंग वड्डा मश अवतार होया है। मुंडंग दा भाव है वड्डे मथे वाला, वड्डियां भागां वाला, जां कह लो मुंडन दा भाव चूरण बना देना, बड़ियां नूं दलन मलन वाला। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे फंदिओ काल झुंडंग। पर काल दे जाल तो मश अवतार भी बच नहीं सकिया, उसनों भी दुनिया तो काल लै गया। जितै होए बीते ते काल जीते। जिन्ने भी पैदा होए ने जो उपजे सो बिनस है। गुरु तेग बहादुर साहब भी कहते ने, पातशाह कहते जिन्ने भी पैदा होए ने काल ने जित ले, बचिया कौन? जे कोई चाहता है ना स्वासां दी पूंजी वध जावे, अगर किसी अवतारी महापुरुष ने 4 दिन वध कड्ढे होणगे ते कहंदे ओदा एक कारण है, वो ये है जितै सरन जय हैं त्यो राख लै हैं। उदा रहिंदा कोई नहीं, कोई ना रह है राजा राणा। पर जेड़ा अकाल पुरख अगे बेनती करे, जेड़ा ओदी शरण लै लवे, ओनू ओ रख सकदा है, सवास ओदे बख्श सकदा है, नहीं तो ओदे अगे अड़फस किसे दी नहीं चलदी। भुजंग प्रयात छंद, ये वल खादा छंद है। पिछला रसावल छंद वो अर्ध भुजंग सी, उच थोड़े वल ने, इच बहुते वल ने। बिना सरन ताकी न औरे उपायं, कहाँ देव देव देवितं कहाँ रंक रायं। कहंदे ओदी शरण तो बिना कोई उपाय जतन कामयाब नहीं है। कहाँ देव दैतं, चाहे वो देवते ने, दैंत ने, चाहे वो रंक ने, गरीब ने, राजे ने। काल गरीबी वेख के, तरला वेख के नहीं छड़दा, या अमीरी वेख के, ताकत वेख के नहीं छड़दा। राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बडानी रे। सो पातशाह इत्थे ये गल कहंदे ने भी चाहे वो देवदैत राजे रंक ने, सब नूं काल लै जांदा है। कहाँ देव दैतं कहाँ रंक रायंग। तू दैत है, देवता है, चंगे कर्म करदा है, मंदे करदा है, तू गरीब है, अमीर है, काल खुरा खोज मिटा दिंदा है, खात्मा कर दिंदा है। कहाँ पात साहं कहाँ उमरायं, बिना सरन ताकी ना कोटै उपायं। पात कहंदे ने तख्त नूं, बैठण वाला उत्ते शाह, राजा वड्डा राजा। उमरायं उमराव कहंदे ने अमीर नूं, चौधरी नूं, जिहदे कोल दौलत बड़ी है। कहंदे चाहे तू पातशाह है, चाहे उमराम है, बिना सरन ताकी ना कोटै उपाय। करोड़ां जतन कर लै, परमात्मा दी शरण लै लवें ते बचाए, नहीं ते कोई बचा नहीं सकेगा तैनू। जितै जीव जंतं सो दुनियं उपायं, सबै अंत कालं बली काल कायं। जिन्ने भी जीव जंतु अंडर जेर सेदज उदपुर चों पैदा होए ने, दुनिया दे विच उस परमात्मा ने उपाय पैदा कीते ने।
ਸਭੈ ਅੰਤ ਕਾਲੰ ਬਲੀ ਕਾਲ ਕਾਇੰ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਲੈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਓਟੰ, ਲਿਖੰ ਜੰਤਰ ਕੇਤੇ ਪੜੇ ਮੰਤਰ ਕੋਟੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਜੰਤਰ ਵਰਤ ਲੈ। ਉਹ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕੀਰ ਜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਨੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਖਾਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਸਰਣਾਈ ਛੁੱਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਜ ਛੰਦ ਜਿਤੇਕ ਰਾਜ ਰੰਕਿਅੰ, ਹਨੇ ਸੁਕਾਲ ਬੰਕਿਅੰ। ਰਾਏ ਤੇ ਰੰਕ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਨੇ ਸੁਕਾਲ ਬੰਕਿਅੰ, ਬੰਕਾ ਬਲਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਏ, ਹਣ ਲਏ, ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤੇਕ ਲੋਕ ਪਾਲਿਅੰ, ਨਿਧਾਨ ਕਾਲ ਦਾਲਿਅੰ। ਲੋਕ ਪਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲਦੇ ਨੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਿਧਾਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਦਾਲਿਅੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਧਾਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਜੇ ਜਪੈ, ਅਨੰਤ ਥਾਟ ਤੇ ਥਪੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਲਹਿਤਾ ਹੈ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਥਾਟ ਤੇ ਥਪੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਚਾਅ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਜਿਤੇਕ ਕਾਲ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਜਗਤ ਜੀਤ ਜਾਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਜੀਵਨ। ਹਰ ਭਜ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਚਾਰ ਚਿਤ੍ਰਿਅੰ, ਪਰਮੰ ਪਵਿੱਤਰੰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਚਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਚਿਤਰੰ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੰ ਪਵਿੱਤਰੰ, ਉਹ ਪਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਲੋਕ ਰੂਪ ਰਾਜਿਅੰ, ਸੁਣੇ ਸੋ ਪਾਪ ਭਾਜਿਅੰ। ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਿਅੰ, ਉਹ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਸੋ ਪਾਪ ਭਾਜਿਅੰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਪੇਨ ਐਂਡ ਸਿਨਸ ਆਰ erased, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
विशाल लाल लोचनं बेअंत पाप मोचनं। कहंदे जदों वो वीर रस विच आउंदा है ना, जदों संतां ते दया करदा है ते दोखियां ते उसनूं क्रोध आ जावे उन्हां दे कर्म वेख के, महाराज कहंदे नेत्र लाल हो जांदे ने उसदे। बेअंत पाप मोचनं, वो फिर पाप कमाउण वालियां दे रूह नूं खिच लैंदा है, शरीर नूं रूह तो निजात दवा दिंदा है। मोचनं तो भाव छड़ा लेना, जां इउं कह लो वो परमात्मा बेअंत पाप मोचनं, दोषियां कुकर्मियां दे पाप खो के उन्हां नूं पवित्र करन वाला है। चमक चंद्र चार्यं अगी अनेक तार्यं, चार्यं सुंदर, चंद्रमे दी चमक है ना बड़ी कोमल है, सूरज दी हरे चमक ते तपाउंदी है, चंद दी चमक बड़ी कोमल है। अगी अनेक तार्यं, चंद्रमे दी चमक अंधकार च प्रकाश कर सकती है पर मन तक उहदी पहुंच नहीं। अकाल पुरख दे नाम दी जिहड़ी चमक है ना, अगी अनेक तार्यं, दुराचारियां दे अंदरों अज्ञान दा खुरा खोज मिटा के ज्ञान बख्श के उतार लैंदा है, उधार कर दिंदा है। उहदी चमक दी पहुंच मन ताई है। रसावल छंद जितै लोक पालं ते तै जेर कालं, लोकां नूं पालण वाले जिन्ने भी राजे ने तितै जेर कालं। जेर फारसी दा पर्शियन दा लफ्ज है, मतलब है पराजित करना, हरा देना। महाराज कहंदे ने जिन्ने भी राजे ने उन्हां दे प्रजा अधीन है ते सारे राजे काल दे अधीन ने, मौत दे पराजित कीते हुए ने। जितै सूर चंद्रं कहाँ इंद्र बृंद्रं, चाहे सूरज है, चाहे चंद है, चाहे देवतियां चो महान देव इंद्र देवता ने। बृंद्रं एक इंद्र नहीं, बृंद तो भाव है समूह, झुंड, करोड़ा चाहे देवते ने। महाराज पातशाह कहंदे ये सारे दे सारे काल ने जिते हुए ने, मौत ने सब दा खुरा खोज महाराज कहंदे ने मिटाया होया है। सो दीन दुनिया दे मालक यही समझाउंदे ने, तरन तारण हर निध दुख ना सकै व्याप। दुखा तो निजात चाहुंदे हो ते अकाल पुरख दे चरनी लगो, होर कोई चारा नहीं है। कृत मिट जाती है, करता रहन वाला है। पुछंग प्रयात छंद फिरै चौदहों लोके अंकाल चक्रं। महाराज कहंदे 14 लोकां विच काल दा चक्र कहंदे ने, काल दी हकूमत, उहदा डंडा कायम है। मौत हकूमत करदी है, काल हकूमत करदा है सारियां दे उत्ते। पातशाह कहंदे सभय नाथ नाथे प्रमं पहो बकरं। नाथ हुंदा जे स्वामी, ते स्वामी ने जिवें सारियां दे नथ पाई हुंदी है ना, भी सारियां नूं हुक्म च चलाउंदा है। कहंदे दुनिया दे जिन्ने भी स्वामी ने, जिन्हां ने दुनिया नथी हुई है, बड़े बड़े लीडर राजे जिन्हां ने नथ पाई है, लोकां नूं भै विच रखदे ने, इन्हां वड्डे वड्डे नाथां दे नक विच नकेल पा दिंदा है काल। जिहड़ा है एडा वड्डा है, इन्नी ताकत दा वो मालक है। प्रमं पहो बकरं, ओदी पाई हुई नकेल तो, भ्रमंग दा भाव है घूम नहीं सकते, बकरंग टेढ़े मेढ़े नहीं हो सकते, उहदे हुक्म तो बाहर नहीं जा सकते, भौ नहीं सकते, वारा नहीं चल सकते, उहदे हुक्म तो बिना पता नहीं हिलदा। कहाँ राम कृष्णं कहाँ चंद सूरं। कहंदे चाहे चंद सूरज ने, चाहे श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी, या जितने भी, चाहे महादीन है, चाहे बुद्ध ने, जिन्ने भी महापुरुष गुरु पीर पैगंबर ने, अकाल पुरख अगे ते हाथ जोड़ के खलोंदे ने। बाणी कहंदी है ना, कोट सूर जाकै प्रगास, कोट
कोट महादेव बिलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करै, ब्रह्मा कोट वेद उचरै। ओदे चरनां च देवियां देवते ओदी जय जयकार करदे ने। किवें खलोते ने ओदे दर ते? कलगीधर पातशाह कहंदे ने, सबै हाथ बांधे खरे काल हजूरं। ओदे हजूर मौत दे हाथ जोड़ के सारे खलोंदे ने, अकाल पुरख दे अगे हाथ जोड़ के खलोंदे ने। सो अगे दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, सवैया काल ही पाए भयो भगवान, सो जागत या जग जा की कला है। हुण जिन्हां नूं असीं समझ लिया ना भी शायद ये परमेश्वर ने, हाँ परमेश्वर दे भेजे महापुरुष जरूर ने, साडे तो महान ने, अवतारी पुरुष ने, पर हुण कहण लगे ने तुहानूं दसदा मैं, क्योंकि लोकां की समझिया शायद ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति कीती है, शायद विष्णु जी पालना करते ने, शिव जी महाराज लहता करते ने। जो भी है उहदे हुक्म तो बाहर नहीं है। एका माई जुगत व्याही, तीन चेले प्रवाण, सारे उहदे ही चेले ने, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, बहुता इहो विडाण। कहंदे वो हुक्म च चलाउंदा है। कहंदे जिन्हां नूं तुसीं सोचदे हो भी दुनिया चलाउंदे ने, पैदा करदे ने, बचित्र नाटक राही कलगीधर कहंदे नहीं, अकाल पुरख इन्हां नूं पैदा करके चलाउंदा है। काल ही पाए भयो भगवान। इत्थे जिहड़ा भगवान है ना, ये लफ्ज वरतिया विष्णु लई। कहंदे काल ही पाए भयो भगवान, सो जागत या जग जा की कला है। जिसने सारे जगत विच अपनी कला करामात वरताई है ना, अकाल पुरख ने, ओदी कला चों ही विष्णु जी पैदा हुंदे ने। अगे महाराज कहंदे ने, काल ही पाए भयो ब्रह्मा, शिव काल ही पाए भयो जुगिया है। काल दी ताकत चों ही, अकाल पुरख दे हुक्म चों ही भयो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी पैदा होए, शिव पैदा होए, शिव जी पैदा होए। काल ही पाए भयो जुगिया है। शिव जी दा रहन बहन उपरामता वाला है, सुहा मल के रखते ने, मौत नूं याद रखते ने, भी सच्चाई ये है वो सोचते ने, जोगियां वत रहिंदे ने। कहंदे ये महापुरुष अकाल पुरख दे पैदा कीते ने, उहदे हुक्म विच दुनिया ते आए ने। जां तिस भाणा तां जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, माया मोह वधाएंदा। गुरु ग्रंथ साहिब भी यही कह रहे ने, कहंदे उहदे हुक्म विच पैदा होए ने। अगे महाराज कहंदे ने, काल ही पाए सुरा सुर गंधर्व, जश भुजंग दिशा विदिशा है। सुरा सुर, सुर देवते चंगे कर्म करने वाले ते दैंत आ सुर मंदे कर्म करने वाले। गंधर्व कहंदे देवतियां दे दर ते जेड़े गाउंदे ने ना, उन्हां नूं गंधर्व कहा जाता है। यश एक कुबेर देवता है, उहदे सेवादारां नूं यश कहंदे ने। भुजंग जेड़े सप आदक नाग आदक ने, जिन्नियां भी जोनां ने, देवी देवते जिन्ने भी महापुरुष ने। दिशा दिशा है, दिशा नॉर्थ ईस्ट वैसट साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार दिशा इन्हां दे विदिशा, चार कोने, आसमान धरती 10 दिशा बन गईयां। ये सारियां दिशा विदिशा काल ही पाए, काल दे हुक्म विच ही ये बणियां ने, सिरजना हुई है। सो अगे महाराज फुरमान करते ने, और सो काल सबै बस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। कहंदे देखो दुनिया दे उत्ते जितने भी काल दे समय दे पैदा कीते हुए ने, और सो काल जेड़े कहंदे ने असीं दुनिया दा काल करन वाले हैं, कहंदे कलगीधर नहीं, वो भी काल दे वस विच ने। मतलब और सो काल, जिन्होंने ने भी अपने आप को काल वर्गे सूरबीर रखवाया है। सबै बस काल के, बड़े बड़े सूरबीर
मौत दे हत्थां विच ही खेडदे ने। अकाल कौन है? महान कौन है? महाकाल। जो काल तो तकड़ा है वो कौन है? कहते एक ही काल अकाल सदा है। गुरु ग्रंथ साहब ने उसनूं लिखिया, अकाल मूरत जिस कदे नहीं खाओ। जेड़ा मूरत तो रहत, जिसनूं कोई मार नहीं सकता, वही एक अकाल पुरख है जो सारियां च श्वास बन के जोत बन के समाया है। होर कहंदे सब दुनिया तो जान वाले ने। ये इष्ट है गुरु गोबिंद सिंह दा, अकाल पुरख। भुजंग प्रयात छंद नमो देव देवं नमो खड़ग धारंग। नमस्कार है मेरी उस अकाल पुरख नूं जो देवतियां दा भी देव है। नमो खड़ग धारंग, जिसने प्रतख मैदाने जंग सूरबीरां दे रूप विच खंडा फड़िया है, या निर्गुण स्वरूप के तौर पर हुक्म रूपी खंडा फड़िया है। दो धारा ने जेदियां पैदा करी जाता है, खात्मा करी जाता है। कहते उन्होंने नमस्कार है। सदा एक रूपं सदा निर्विकारं, वो एक रूप है, भाव सदीवी एक रहन वाला। वो ये नहीं है भी जवान है बजुर्ग हो जाएगा, बचपन विच है जवान हो जाएगा, कहते नहीं, वह एक ही रूप है। सो महाराज आखण लगे सदा निर्विकारं, विकारां तो रहत जी। काम क्रोध लोभ मोह हंकार उहदे विच कोई भी अवगण नहीं है। नमो राज संग सांत कंग तामसेयं। राज संग राजियां वाले ठाड़, जे कोई राजा है तो उहदे च भी उहदा ही बख्शिया सवासां दा खजाना है। किते राजियां वांगू रह रहा है। सांत कंग, किते शांत चित साध बन के बैठा है, किते ताम सेयंग, किते क्रोधी बन के तुरिया फिरदा है, लड़दा फिरदा है। सारियां दे विच ओदी ही जोत है। ये गुरु गोबिंद सिंह दी नदर है। नमो निर्विकारं नमो निर्जुरेयं। तकरीबन ही संस्कृत, फारसी ते अरबी ये भाषा बहुतात विच विचित्र नाटक विच आउंदियां ने। ये नमो लफ्ज सारा संस्कृत तो लिया गया खजाना है। कहते तू निर्विकार है, नमो निर्जुरेयं, रोग है, जर तो रहत है, बुढ़ा नहीं हुंदा, तैनू कोई रोग नहीं लगता। रसावल छंद नमो बाण पाणं नमो निरभयाणं। ऐ दीन दुनिया दे मालक, जीव जंतुआं दी किस्मत दा तीर तेरे हाथ विच फड़िया होया है। जां प्रतख मैदाने जंग विच सूरबीरां वाले रूप विच तू बाण दे धारने वाला है, पाण पहनण वाला है, बाण नूं तीर नूं। नमो निरभयाणं, भयान कहंदे ने डराउणा, तू निरभयान है, डर तो रहत है, किसे तो डरदा नहीं है तू जदों मैदाने जंग विच भी उतरे। नमो देव देवं पवाणं पवेयं। एक ते ओ देवते जिहड़े आ गए चले गए, उमरां ने समा है, पर तू उन्हां देवतियां दा देव है। कैसा है? कहंदे पवाणं पवेयं, जेदी जगत विच भवान जगत विच भवेयं सदा ही होंदा है, सदीवी रहन वाला देव है तू। भुजंग प्रयात छंद नमो खग खंडं कृपाणं कटारं। खग कहंदे ने तलवार नूं ते खंड कहंदे ने दो धारे खंडे नूं। कृपाणं कटारं, कृपाण किरपा नूं जो फेंक दवे, राणे ना किरपान किरपा नूं फेंक दवे, हमला कर दवे। नन्ने नाल किरपान जो किरपा कर दवे, आन शान दी रखिया लई। ते कटार कहंदे ने दो धारा, छोटा जिहा शस्त्र है जो कमर कसे विच ਸਿੰਘਾਂ ने निहंगां ਸਿੰਘਾਂ लमकाया हुंदा है। सो ये जिन्ने भी शस्त्र ने मैनू तेरा ही रूप लगते हैं। क्यों तेरा रूप लगते हैं? क्यों शस्त्रां नूं पीर के अगे तुहाडे नाल सांझ पाउने आ। महाराज पातशाह कहंदे ने सदा एक रूपं सदा निर्विकारं। आया विकारां तो रहत, एक रस रहन वाले, एक रूप रहन वाले परमात्मा। नमो बाण पाणं नमो दंड धार्यं। हाथ विच ना तू शस्त्र फड़े हुए ने,
तू दंड देण वाला है, तू सजा देण वाला है। तेरे हुक्म दे विच सजा मिलती है, तेरा हुक्म ही शस्त्र है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे गुरु गोबिंद सिंह, जिनै 14 लोक जोतंग बिथारियं। और अकाल पुरख जिथे तू शस्त्र स्वरूप है उत्थे जोत स्वरूप भी है। तू 14 लोकां दे विच तेरी जिहड़ी जोत है ना वो बिथारी हुई है, तू फैला कीता होया है। तू रवसस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार। सूरज चंद भी तेरी ज्योति नाल जगदे ने, त्रिभवन अंदर तेरी जोत समाई हुई है। नमस्कार्यं और तीरं तू फंगं। मैं तैनू नमस्कार करदा है। हुण देखो ये जेड़े तीर ने ना, तुफंग जेड़ी रफल है, कहंदे मेरा तू ही है सब कुछ। ऐ अकाल पुरख मेरा तू ही है सब कुछ। अगे महाराज पातशाह आखण लगे, नमो खग अदगं अपेयं अपंगं। खग दो धारी खंडा, अदगं कहंदे ने जो दाग तो बिना है। चाहे परमात्मा कोल दो धारी खंडा है, हुक्म विच दुनिया नू आगास बख्शदा है, पैदाइश करदा है, हुक्म विच लहता खात्मा करदा है। और सारियां च जोत स्वरूप है, पर अदाग है। साडे कीते कर्म चंगे जां मंदे ये साडे ते है, साडी झोली पा दिंदा है, आप उपराम हो जांदा है, पासे हो जांदा है। दीन दुनिया दे मालक इदां दे ने जिवें फुल्लां च खुशबोई है। सुगंधी माणी जाओ ते माणी जाओ, फुल तोड़ लो ते सुगंधी गई। जिउंदा है, कर्म करवाई जा रहा है। जिस दिन जोत खिंच लई उस दिन सूक्ष्म जीव साडे जो अंदर है, सजा उसनूं ही भोगनी पैनी है। परमात्मा उपराम हो जाता खुशबोई वांगू, सड़दा फुल ही है, खुशबोई चली गई। सो महाराज उपराम हस्ती ने, दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे, अभेयं अपंगं। अभे भै तो रहत बेखौफ है, अपंगं अटुट है, तैनू कोई तोड़ नहीं सकता, भंग नहीं कर सकता तैनू। गदायंग रिष्टंग नमो सहतियं। गदा ये पर्शियन का लफ्ज है। गदा का पहला मतलब है फकीर होना। ते जे तुसी संस्कृत विच आ जाओ तो गदा का जिहड़ा मतलब है वो है मुदगरा। वो गदा हुंदी ना, हनुमान दियां फोटोआं च तकी होनी तुसी, पर शस्त्र याद रखियो, शस्त्र ओहदे जिहड़े मैदाने जंग विच काम आ गए ओहदे ही हुंदे ने। शस्त्र किसी के नाम की मोहर नहीं हुंदी। ये जिन्हां शस्त्रां दे नाम लैंदे ने खालसा वरतदा रहा मैदाने जंग विच, होणगे देवतियां को भी, पर खालसे दे शस्त्र ही ने जिन्हां ने भारत वर्ष नूं आजाद कराया है। होर कोई आजाद नहीं करवा सकिया। बुल्ले शाह ने तां ही कहा सी, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, गर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। ये उहदे बख्शे शस्त्र ही ने भारत वर्ष इंसानियत आजाद हुई सी। इत्थे कहंदे तैनू नमो है, तू फकीरां दा रूप है, तू गदा दा शस्त्रां दा रूप है। गरिष्टंग बड़ा भारी है, बरकतां वाला है। नमो सहतियं, सहती बरशी नूं कहंदे ने। किते तू बरशी दे स्वरूप विच है। जे नै तुल्यं बीर बीयंग ना बीयं। जे नै तुल्यंग बीर बीओ ना बीयं। तेरे तुल बराबर, तुल्यंग तेरे बराबर कोई तुल जावे ऐसा कोई सूरमा। बीओ तो भाव है दुनिया दे उत्ते पैदा नहीं होया ऐसा कोई वीर जिहड़ा तेरे बराबर तुल सकदा है। अगे महाराज ये बाणी विच गुरु ग्रंथ साहिब विच भी कहंदे ने, एको वेखा अवर ना बीया। महाराज कहंदे सारियां च ही समाया है, सूर वीरां दे विच, शस्त्रां दे विच, हर जरे विच जोत स्वरूप होके समाया है। दीन दुनिया दे मालक अगे फरमान करदे ने, रसावल छंद नमो चक्र पाणं अपूतं भयाणं। अकाल पुरख नमस्कार है। चक्र पाणं, तू दुनिया नू मंडल नू अपने हुक्म नाल धारिया होया है।
तेरी हकूमत चल रही है दुनिया दे उत्ते। अभूतंग भयानंग, अभूत पंजां तत्तां तो रहत है तू पंजां तत्तां दा मिट्टी आदक दा बनिया होया नहीं है। भयानंग भय देण वाला है सब नूं। भयानंग सदा तेरी होंद बरकरार है, होंद वाला है। नमो उग्र दाड़ंग महागृष्ट गाड़ंग। उग्र कहंदे ने तिखा वड्डा, दाड़ंग तो भाव है आ वड्डे दंद ने पिछे चबाउंदे ने ना प्रशादे नूं। कहंदे इदां है तेरी काल रूपी जिहड़ी ताकत है वह बड़ियां भयंकर दाड़ां वर्गी है। सब नूं चबा के सुट दिना है तू, सब नूं चिथ के सुट दिना है। जो भी पैदा होया है दुनिया ते उसनूं चिथ दिना है तू। बड़ा बलवान है। महागृष्ट गाड़ंग, गाड़ा बहुता ते गृष्ट दा मतलब वड्डा, बहुत वड्डा आकार गत अजमत जो तेरा है, जो बयानिया नहीं जा सकता। अजमती आकार है तेरा, अजमत बड़ी है तेरे विच। महाराज कहंदे गाड़ी बरकत दा वड्डा मालक है। नमो तीर तो पंग जे नै सत्र को पंग। तेरे अगे अकाल पुरख नमस्कार है। तू हुक्म रूपी तीर छड्ड के दुनिया नूं चलाउना है। चंगे मंदे कर्मां दी सजा दिना है। तेरे हुक्म विच सारी सृष्टि चलदी है। किते तू प्रतख सूरमे दे हथ विच फड़िया तीर है, क्योंकि तीर जान लै भी लैंदा है ते रखिया भी कर दिंदा है। शस्त्र जान लै भी लैंदे ने, रखदे भी ने, ते रब दे भी यही गुण ने। रखियक है, पैदा करन वाला है। शस्त्रां नूं तां पीर किया। कहंदे किते तोप है, किते तीर है तू, किते कमान है तू। जिनै सत्र कोपंग, नमो तीर तोपंग। तू ओ तीर है, तू ओ शस्त्र है अकाल पुरख। कोपंग तो भाव जो वैरियां दा विनाश कर देना है, वैरियां नूं खत्म कर देना है। तेरा हुक्म रूपी तीर भी दुनिया दा खात्मा कर सकता है। अगे महाराज पातशाह कहंदे ने नमो धोप पट्टंग जिनै दुष्ट दट्टंग। धोप जिहड़ा लफ्ज़ आउंदा है ना, एक सीधी पतली जी तलवार होंदी है। ये वखो वख शस्त्रां दे नाम ने, और इतने नाम कलगीधर लिख गए, किसी होर कवि जन नूं ये नामां दा ज्ञान नहीं है। पट्टंग ढाल नूं कहंदे ने। जान दी रखिया करन वाली ढाल भी तू है, जान लैण वाला शस्त्र भी तलवार धोप भी तू है। कैसे शस्त्र जिनै दुष्ट दट्टंग, जिन्ना दुष्टां नूं ताड़िया है, झंझोड़ के सुट दिता है, खत्म कर दिता है। जितै शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग। ये बड़ा प्रचलित है खालसे विच नारा। महाराज कहंदे जितै शस्त्र नामंग। शस्त्र की हुंदा? शश। शश दा मतलब है कटना, हाथ विच फड़ के जिद्दां तलवार है। अगे कहंदे ने तैनूं नमस्कार है, ऐ शस्त्रां दे स्वरूप वाले परमात्मा। सारे शस्त्रां नूं नमस्कार। जितै अस्त्र भेयंग नमस्कार तेयंग भेयंग। जिहड़े जाने जांदे ने जिन्ने भी अस्त्र ने, अस्त्र कहंदे ने हथों छड्डण वाले नूं, जिवें तीर छड्डीदा है ना, जो हथों छड्ड के चलाइए। जिन्ने भी अस्त्र ने, जिन्ने भी शस्त्र ने, तेरा ही रूप ने। मैं नमस्कार तैनूं पातशाह कहंदे करदा हां। आद मद और अंत परमेश्वर रखिया। शस्त्र पीर क्यों ने? शस्त्र रखिया करते ने। शस्त्र पीर क्यों ने? शस्त्र लैता करते ने, खात्मा करते ने। ये परमात्मा का रूप कह के तां ही वड्याया है। जान बख्श भी दिंदे ने, जान लै भी लैंदे ने, तख्ते पलट भी दिंदे ने, तख्ते दवा भी दिंदे ने। पर महाराज कहंदे आए परमेश्वर तेरा ही रूप ने, तू भी रखिया करदा, ये भी रखिया करते ने। इसे करके ही तख्तां ते चले जाओ, चाहे हजूर साहब है, अकाल तख्त साहब है, पटना साहब है, जितने भी खालसे दे तख्त ने, दमदमा साहब है, केसगढ़ साहब है, शस्त्र उच्चे पए हुंदे ने। अकाल पुरख का स्वरूप मन्निया गया शस्त्रां नूं। कदे कोई तर्क करे तो समझ रखियो इन्नी। दीन दुनिया दे मालक कहंदे तेरे अगे नमस्कार है। सवैया मेर करो तृण ते मोहे जाहे, गरीब नवाज ना दूसर तो सो। निर्माणता विच आ गए। मैं फिर कह दवां
शस्त्र निजात दिवाउण लई बख्शे ने पातशाह ने। गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी, सतगुर बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करै उडीना। वो जानते ने जे शस्त्रां दी वडियाई करांगे, भारत वर्ष दे लोग जो गऊआं बन गए ने शस्त्र उठाउणगे ते मुगलों नाल जंगजू क्रिया विच हिस्सा लैणगे ते इन्हां नूं आज़ादी मिल जाएगी, नहीं तो सदियां तो गुलाम ने। शस्त्र ही तख्त दबाउंदा है। अगे निर्माणता विच आके पातशाह समझाउंदे ने, आखण लगे अरदास करनी होवे ते इस तरह उहदे अगे तरला लिया करो, मेर करो तृण ते मोह जाहे गरीब नवाजना दूसर तो सो। ऐ अकाल पुरख मैनू मेर कर दे, मैं घाह दा किणका हाँ। मेर कहिंदे ने परबत नूं, मैनू पहाड़ बना दे, मैं दुखां विच मसलिया गया हाँ किणका बन के, मेरे दुख दूर कर दे। गरीब नवाज ना दूसर तो सो। महाराज कहिंदे ये जिहड़ा गरीब लफ्ज है ना अरबी दा है, कंगाल। नवाज लफ्ज फारसी दा है। वेखो एक पंक्ति विच की कुछ महाराज वरतदे ने। गरीब लफ्ज अरबी दा है, भाव दीन कंगाल, ते नवाज लफ्ज फारसी दा है, वड्याउण वाला। तेरे अगे तां बेनती है तू गरीबां नूं जिन्हां दा खुरा खोज मिट चुकिया होवे उन्हां नूं नवाजण वाला है। तेरे वर्गा गरीब नवाज कोई नहीं। आओ गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछिए भी ये ठीक है। कहंदे गरीब नवाज गुसैया मेरा माता छत्र धरै, गरीबां दे सिर ते छत्र पहना दिंदा है। अगे महाराज आखण लगे मेरे वर्गा गरीब नहीं ते तेरे वर्गा निवाज नहीं। वेखो महाराज अकाल पुरख दा स्वरूप ने, गुर परमेश्वर एको जान। इत्थे सानू सिखाउंदे ने किद्दां अकाल पुरख अगे तरला लेना है। भूल शिमो हमरी प्रभ आप, ना भूलन हार कहा को मोसो। महाराज कहंदे भूल शिमो हमरी प्रभ आप, ना भूलन हार कहूं को मोसो। महाराज असीं जीवन विच विचरदे आ ना बड़ियां गलतियां करदे हैं, गुरमत दे उल्ट चलदे हैं। सो साडी कोई भी भुल है ना शिमो खिमा कर दिओ, अनजान जान के सानू माफ कर दिओ। ना भूलन हार कहूं को मोसो, मेरे वर्गा कोई भुलन हार नहीं है, गलतियां करने वाला कोई होर नहीं है, ते तेरे वर्गा बख्शिंद कोई होर नहीं है। सेव करी तुमरी तिनके सब ही ग्रह देखियत द्रब भरोसो। कहंदे भावें कोई किणका है ना मिट्टी च रुलदा, जेड़ा तेरे दर ते सेवा कर लैंदा है ना, सब ही ग्रह देखियत द्रब भरोसो, ओदा घर द्रब दे नाल धन नाल भर जांदा है जेड़ा तेरी सेवा करदा है। आओ गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछिए ठीक है। कहंदे चार पदार्थ हर की सेवा, अकाल पुरख दी सेवा चो सभे पदार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सो महाराज कहते सेवा किहदी करनी है, केवल एक अकाल पुरख दी उहदे नाल जुड़ना है। या कल मैं सब काल कृपान के भारी भुजान को भारी भरोसो। देखो एक गल है, कृपान तो भाव है कृपान धारी है, अपनी हकूमत नाल दुनिया नूं चलाउण वाले, हुक्म रूपी कृपान नाल दुनिया नूं चलाउण वाले, ना कट्टे जाण वाले हुक्म रूपी शस्त्र नाल दुनिया नूं चलाउण वाले परमात्मा, उहदी कृपान उहदा शस्त्र हुक्म कट्टिया नहीं ना जांदा। या कल मैं इस कलयुग दे समय विच तेरे तो बिना, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे होर किसे ते भरोसा नहीं है। इथों समझ लगदी बचित्र नाटक अकाल पुरख नाल जोड़न लई लिखिया। कहंदे हर देवी देवते दा अदब है, रहबर दा अदब है, पर भरोसा तेरे ते है, रखण वाला तू ही है, होर किसे अगे कहंदे सिर नहीं झुकाउंदे। आखण लगे या कल मैं सब काल कृपान के भारी भुजान को भारी भरोसो। मैनू ऐ परमात्मा भारी भुजान, तेरियां भारी भुजावां उत्ते, तेरे बल उत्ते भारी भरोसो, भारा भरोसा है। तुमरो बल तुम संग सोहेले, जो जो करहो सोई सोई करना। परमात्मा तेरा ही बल है, तेरे हुक्म विच ही सब ने दुख सुख, मैनू तेरे ते ही भरोसा है, होर किसे ते नहीं। सुंभ निसुंभ से कोट निसाचर, जाहे शनेक बिखै हन डारे। इन्ना
ਬਾਹੂਬਲ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁੰਭ ਤੇ ਨਸੁੰਭ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਨੇ ਨਾ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਸਾਚਰ ਨੇ। ਨਿਸਾਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼। ਜਾਹੇ ਸ਼ਨੇਕ ਵਿਖੇ ਹਨ ਡਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਨੇਕ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨ ਡਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਤੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਚੰਡ ਅਮੁੰਡ ਸੇ ਮਾਹਕ ਸੇ ਪਲ ਬੀਚ ਨਿਵਾਰੇ। ਇੱਕ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ? ਤੈਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੂਮਰ ਲੋਚਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਮਾਹਕ ਸੇ ਪਲ ਬੀਚ ਨਿਵਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਮਰ ਸੇ ਰਣ ਚਿੱਛਰ ਸੇ ਰਕ ਤਿਸ਼ਰ ਸੇ ਝਟ ਦੈ ਚਜਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਾਮਰ, ਚਿੱਛਰ ਤੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹ ਝਾੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਏ ਕਹਾਂ ਪਰਵਾਹ ਰਹੀ ਇਹ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰੇ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਐ ਸਿੱਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਨੇ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਸਮ ਧਾਰ ਲਵੇਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਵੇਗਾ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੋ ਸੇ ਮਦ ਕੀਟਬ ਸੇ ਮੁਰ ਸੇ ਅਗ ਸੇ ਜਿਨ ਕੋਟ ਦਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ, ਮਧੂ ਕੀਟਬ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ, ਮੁਰ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੋਟ ਦਲੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੈਂਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਵੇਂ, ਦਲ ਕੇ ਮਲ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਵੇਗਾ। ਓਟ ਕਰੀ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਿਨੈ ਰਣ ਚੋਟ ਪਰੀ ਪਗ ਦਵੈ ਨਾ ਟਲੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਏਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਓਟ ਦੀ, ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਡਾ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਢਾਲੇ ਦੀ, ਪੱਗ ਦਵੈ ਨਾ ਟਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਢਾਲੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਪੱਗ ਦੋ ਕਦਮ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਢਾਲਾਂ, ਸਭ ਓਟ ਆਸਰੇ ਮੌਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਬਿਖੈ ਜੇ ਨਾ ਬੂਢੈ ਨਿਸਾਚਰ, ਪਾਵਕ ਬਾਣ ਬਹੇ ਨਾ ਜਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਪੀ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਡਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਾਚਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸੀ, ਅਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸ ਤੋਰ ਬਿਲੋਕ ਅਲੋਕ, ਸੋ ਲਾਜ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਭਾਜ ਚਲੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸ ਤੋਰ ਬਿਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਅਸ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਕ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਲਾਜ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਭਾਜ ਚਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।